Hello students, good morning. Today we are going to continue chapter number 5 of science, that is acids, bases and salts. Now first we'll do a quick recap. In the previous video we have studied about different acids, bases and salts with the examples. We also got to learn about indicators. Indicators are the things which gives colored solution, and we get to know whether the substance is acid or base. Then litmus test using litmus paper. We also used testing solutions with turmeric and China rose indicators. Now today we are going to learn about acid rain. Now what is acid rain? Whenever rainwater has increased amount of acids in it, it is called acid rain. Means whenever, let's say, there are some pollutants in air like carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, which are released from industries or from volcanic eruptions. वो जब atmosphere में present होंगे, they are already present. Okay, now when the rain falls, तो जो water droplets है, they'll get mixed up with those pollutants, with those gases which are harmful gas, and these pollutants when they mix with the rainwater they form acids. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड. सेम वे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल मेक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल मेक सल्फ्यूरिक एसिड. अब ये एसिड्स व्हेन दीज विल come down in the form of rain, they can affect various substances on earth, like for example vegetation, forests, crops, etc. Animal life, suppose animals we get home during rain, we can go at our homes, but some of the animals which do not have their own homes, which live in jungle, which live in forest, or suppose in like outside, they, if suppose they get wet in acid rain, they might, their health might deteriorate. Okay, and buildings, for example, I can give you an example of Taj Mahal. There are some industries near Taj Mahal. Okay, so whenever that those industries, when they emit pollutants, जो harmful gases है, when they release those gases from industries, when they are released during monsoon season, when rain falls, वो जो gas होता है, they'll mix up with the rain and they'll come down in the form of acid rain. अब we know that Taj Mahal, it is made up of white marble, right? So during acid, because of acid rain, वो जो उसके marbles है, now it had turned into yellowish color. Understood the reason? That is because of acid rain. And sometimes जो बहुत पुरानी buildings होती है, if they are not maintained properly, वो ruins बन जाती है. Okay, खंडर हो जाते हैं. See, here is the diagram of acid rain. Here the industries, they release smoke gases, ठीक है, they man made sources है. Then some of the natural sources, जैसे कि volcanic eruptions हो रहा है, तो उसके बाद जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो harmful gases produce हो रहे हैं, these all gases will go up in the atmosphere and they'll form the cloud which is harmful, which is made up of gases. Okay, and this, when they'll fall down in form of rain, जब रेन आएगा नीचे, तो हियर सपोज एनिमल, सपोज ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन, दे ऑल विल गेट अफेक्टेड. नाउ सी हियर यू कैन सी इट इज़ रिटन वेट डिपोजिशन. वेट डिपोजिशन का मतलब होता है कि जो लीव्स है या जो ज़मीन है, वो उसमें जो एसिड वाटर जाएगा, एसिड रेन का वाटर जाएगा, so what will happen, those things will get affected. Understood? And some of the particles will remain in the atmosphere which will come down, वो जो pollutants के form में it will come down. Understood? उसको बोलते हैं हम लोग dry deposition. So this is how acid rain occurs. Understood? Next topic is pH scale. Now what is pH? pH means potential of hydrogen. Suppose we want to weigh any substance, ठीक है, किसी चीज़ का वजन करने, तो देर आर सम यूनिट्स. किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, राइट? तो किलोग्राम क्या होता है, नॉट किलोग्राम, चलो टन्स होते हैं, क्विंटल्स होते हैं, तो वो हायर अमाउंट है. जो ज़्यादा वजन होगा हम लोग उसको मेजर करेंगे टन्स में, और जो बिल्कुल जिसका कम वजन होगा दे विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स, दे विल बी मेजर्ड इन मिलीग्राम्स. ठीक है,
उसी तरीके से if you want to measure the acidity or basic nature of any substance we will use pH scale. pH जो होता है इससे हमको पता चलेगा. Here in the pH जो pH value है it ranges from 1 to 14. ठीक है, pH scale होता है वो 14 वैल्यूज होते हैं उसमें. अगर सपोज किसी चीज़ का pH वैल्यू 1 आया इट मीन्स इट इज़ वेरी एसिडिक. एंड let's say if the pH value is 14, so the substance is very basic. And if it comes on 7 मतलब वो neutral है, मतलब ना तो वो acidic है ना वो basic है. Got it? We'll see the examples also. The pH value ranges from 1 to 14 with 1 being most acidic substance and 14 being most basic substance while 7 is a neutral substance. The pH value is generally determined by using pH strips और solution. pH strips कैसी होती है, अभी हमने जो previous video में we had seen those litmus paper. बस pH strips भी litmus paper के जैसी ही होती है and they are also used in the same way like litmus papers are used. litmus paper जो हम लोगों ने red litmus paper और blue litmus paper के बारे में देखा था, we have seen the video also that acid जो होता है it will turn blue litmus paper into red. वैसे ही pH पेपर्स जो होते हैं, pH स्ट्रिप्स जो होती है, दे विल आल्सो चेंज एंड गिव सम कलर. वो कलर से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं whether the substance is an acid or it is a base. Got it? See here is the pH scale. ये these are pH strips. Got it? ये ऑरेंज कलर की पहले है. Now when ये एक स्ट्रिप हमने लिया पतला सा, got it? और उसको हम लोग ने मान लिया we have dipped into lemon juice. हम लोग ने उसको लेमन जूस में डिप किया. सिर्फ नींबू है, नींबू का रस निचोड़ के रखा है और उसमें ये pH स्ट्रिप को जब डिप करेंगे तो दैट pH स्ट्रिप विल गिव द कलर रेड. इतना रेड देगा, ये जितना रेड है वो उतना रेड हो जाएगा. मीन्स फिर उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे ये ऑलरेडी कलर्स दिए हुए हैं राइट, pH स्ट्रिप के ऊपर दिए हुए हैं, हम लोग मैच करेंगे कि ये कहाँ पर आएगा. अगर वो रेड आया मीन्स उसका pH वैल्यू कितना है 2, मीन्स इट इज एसिडिक. अंडरस्टूड? अगेन लेट्स से हम लोगों ने pH स्ट्रिप लिया और हम लोगों ने उसको ब्लीच जो है यहाँ पे राइट, ब्लीच है या ब्लीचिंग पाउडर है उसको वाटर में सॉल्यूबलाइज किया हुआ है और उसका जो सॉल्यूशन बना है हम लोग उसको ब्लीचिंग में डालेंगे तो इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर. वो इतना ब्लू हो जाएगा. नाउ हियर ऊपर देखो आप लोग, यहाँ पे ब्लू है वो है नहीं. सम ऑफ द pH स्ट्रिप्स दे हैव, मतलब वो इतना लाइट हो गया तो वी विल गेट टू नो दैट द pH इज 12, मतलब ये बहुत बेसिक है. और सेम pH स्ट्रिप इफ यू डिप इट इन वाटर में डालेंगे तो वो ऐसा ग्रीन कलर का हो जाएगा, यहाँ पर आएगा. तो विल गेट टू नो दैट द सब्सटेंस इज न्यूट्रल. अंडरस्टूड? मतलब ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है. ना हियर ऑन द pH स्केल कैन यू सी गैस्ट्रिक एसिड, जो हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है इट इज़ वेरी एसिडिक, उसका pH वैल्यू 1 है. Then comes lemon juice, apple juice, tomato juice, then black coffee, milk. Milk is not neutral. Milk है, it is slightly acidic in nature. Here, its pH value is 6. Then comes pure water, right? Egg, baking soda, then hand soap. These all are basic substances. यहाँ पे जो है ये सारे 7 के बाद जो भी शुरू होते हैं these all are basic substances. Got it? Okay, next comes the process of neutralization. It is very important. See, neutralization is a process or a chemical reaction in which an acidic substance or a basic substance is mixed with each other in order to neutralize their acidic or alkaline nature. मतलब suppose there is an acidic substance, ठीक है. अब वो एसिड है वो जल रहा है या उसको हमको न्यूट्रल, अब उसको एसिडिक नहीं रखना है तो what we are going to do, we are going to add some base in it. तो वो क्या हो जाएगा, जितना भी उसका एसिड का प्रॉपर्टी था, उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब खत्म हो जाएगी और बेस भी उसके साथ मिल गया तो बेस का भी खत्म हो जाएगा. अब न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या बन गया, दे विल फॉर्म अ सॉल्ट. अंडरस्टूड? नमक बन जाएगा वो, नॉट द सॉल्ट दैट वी ईट. एनीथिंग व्हेन एसिड और बेस मिक्स तो वो जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट. डोंट कंफ्यूज, जो घर में खाने वाला नमक होता है दैट इज नॉट द ओनली सॉल्ट. ओके, द सॉल्ट कैन हैव, अब ये जो सॉल्ट है द सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन इट कैन हैव बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल नेचर. तीनों में से कुछ भी हो सकता है वो. मतलब उसमें pH स्ट्रिप डालेंगे तो वो
बेसिक भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, या वो न्यूट्रल भी हो सकता है. द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. और जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो जो भी सब्सटेंस नया बनता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है. A synthetic indicator often used for testing neutralization reaction is phenolphthalein solution. It is pink in color. जो phenolphthalein है वो पिंक कलर का होता है, मतलब उसको पहले एसिड में डाला है, उसके बाद फिर उसमें फिनोफ्थैलिन डालेंगे तो फिनोफ्थैलिन का कलर पिंक होगा, वो कलरलेस हो जाएगा. अब जब उसमें बेस डालेंगे तो अगेन इट विल टर्न पिंक कलर. व्हेन सी हाउ इट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज एडेड टू फिनोफ्थैलिन द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस. एसिड पहले कलरलेस था, उसके बाद फिर उसमें फिनोफ्थैलिन डाला जो पिंक कलर का है वो डाला तो वो कलरलेस हो गया, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एसिड. पहले वो पिंक था, जब एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, इसका मतलब वो एसिड है. ओके. और जब उसके ऊपर वही सेम सोल्यूशन जिसके अंदर एसिड भी है और फिनोल्फथालीन, द सोल्यूशन अगेन विल बिकम पिंक कलर. इसका अंडरस्टूड. सी अगर कंफ्यूज हो विल स्टडी हियर. सी हियर इन दिस सॉल्यूशन, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर पहले से एसिड था. ओके. नाउ व्हेन वी ऐड इंडिकेटर इन इट, इंडिकेटर पिंक कलर का था, जब हम लोग ने एसिड में डाला तो वो पूरा कलरलेस वाटर जैसा हो गया वो. गॉट इट. नाउ वी ऐड सम बेस. यहाँ पे देखो बेस ऐड करें. बेस ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है ये ऐसा पिंक कलर का हो जाएगा. और ये पूरा जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड दिस इज हाउ द सॉल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. सी हियर एसिड प्लस बेस विल गिव वाटर एंड सॉल्ट. साथ में क्या क्या बनेगा, सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा. Now example is given कि HCl is an acid and NaOH is an base. जब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा, NaCl जो नमक होता है हम लोग के घर पे, सोडियम क्लोराइड, एंड H2O that is water. Got it? See here, acid plus base will give salt and water. Understood? Okay, moving on. Here न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है सिर्फ लैब में नहीं होते. हियर सबसे पहले सी इनडाइजेशन. जब एसिडिटी हो जाती है हमको, क्या होता है, बहुत ज़्यादा खा लिया होता है, समटाइम्स वी ईट टू मच फूड. तो जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है, वी हैव स्टडीड, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब वो बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर देता है स्टमक तो हम लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई. क्या करते हैं एट दैट टाइम, वी टेक एंटासिड्स जैसे कि इनो, जैसे कि डाइजिन, राइट. तो ये सब क्या होता है, दीज आर ऑल एंटासिड्स, मीन्स ये सारे बेसिस है. तो एसिडिटी पेट में हो गई, विल टेक बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट एंट बाइट्स. जब चींटी है, वी हैव स्टडीड दैट एंट्स दे प्रोड्यूस विच एसिड, दे प्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड. अब वो एसिड हम लोग के स्किन में गया तो भी इरिटेशन होगा, थोड़ा रेड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी. तो एट दैट टाइम वी यूज आइदर बेकिंग सोडा लगा लेने का, या तो फिर जो दवाई होती है उसके अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या जिंक कार्बोनेट होता है, जो क्या होता है, बेस होता है. अंडरस्टूड. तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, एंट बाइट में फॉर्मिक एसिड था, हम लोग ने ऊपर से सोडियम कार्बोनेट डाला, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, राइट. तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. थर्ड, इट इज यूजफुल. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर यूजफुल इन सॉइल ट्रीटमेंट. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स कभी कभी यूज होते हैं उसकी वजह से जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है. ओके. तो एट दैट टाइम क्विक लाइम मीन्स चूने वाला पानी, दे आर यूज, या तो स्लेग लाइम, दे आर यूज टू न्यूट्रलाइज द सॉइल, ताकि ज़्यादा एसिडिटी की वजह से प्लांट्स मर नहीं जाए. एंड द फोर्थ वन इज फैक्ट्री वेस्ट. जो भी फैक्ट्री में whenever any products are formed, तो जो वेस्ट होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर. तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट है दे कैन नॉट डायरेक्टली डंप इट इनटू वाटर. जो वाटर बॉडी है, रिवर है, उसके अंदर देखो यहाँ पे कैसे है ये फैक्ट्री वेस्ट जा रहा है, दे कैन नॉट डायरेक्टली डंप इट. वाई? बिकॉज वाटर के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है, बिकॉज ऑफ एसिडिटी दे माइट डाई, राइट. So before adding this factory waste into water, they first neutralize it. मतलब उसको ट्रीटमेंट करते हैं,
लाइम सॉल्यूशन से या किसी भी और बेस से, so that the aquatic life does not get affected. Understood? That was the chapter. I have give you notes for this chapter. Write it down and complete your books. Okay, take care of yourselves. Allah Hafiz.